मैं मिन्हा लतीफ़ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। उस पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से जिस डिस्ट्रिक्ट को पूरे देश भर में बदनाम किया जाता है टेररिज्म की वजह से। मैं रोहतर महराज डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में रहता हूँ। मैं खुद भी पत्थरबाजी में शामिल था, मुझे मेरे ऊपर FIR भी हुआ, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे लोगों को डेवलपमेंट चाहिए। ये सब कुछ ड्रामा है। बचपन से ही मैंने थिएटर की फील्ड में कदम रखा था। हमारी जो DDC इलेक्शंस हमारी जो UT में हुई, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हमारी पंचायती राज सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग हुआ। August 5, 2019. The entire nation witnessed a historical moment. Amendment of Article 370. A section of media claimed that the amendment of Article 370 is murder of democracy, and normalcy will never return in Jammu and Kashmir, as people of Kashmir will never accept the change, which will lead to the bloodbath on the streets of Srinagar. But one thing that pleasantly surprised me was the District Development Council's election held last year in December 2020. Media reported a huge participation from the voters as well as humongous enthusiasm amongst the candidates as well. And this is a ray of hope. जब मैं इलेक्शन लड़ रही थी मुझे बहुत सारों ने बोला कि आप पे टेररिस्ट का अटैक हो सकता है, बट मैं इन सब से नहीं डरी। I, Minha Lateef Bhatt, having been elected as a member of District Development Council District Pulwama, do swear in the name of Almighty Allah, affirm that I will be the true faith and allegiance to the Constitution of India. मैं पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। उस पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से जिस डिस्ट्रिक्ट को पूरे देश भर में बदनाम किया जाता है टेररिज्म की वजह से। District Development Council is a local governing body. There are 20 districts in Jammu and Kashmir. Each district has a district council with 14 elected members from different areas. These elected members decide where and what kind of development is required for their respective areas. While growing up in Lucknow, I was shown two sides of Jammu and Kashmir. On one hand, newspapers reported disturbing incidents of terrorism and brutal killing of innocent people. On the other hand, movies showed it as a heaven on earth. This beautiful state was always in news for wrong reasons. We were told that Jammu and Kashmir is the most disturbed region in India. Dissent is brewing in the Kashmir Valley. An amendment of Article 370 will be the last nail in the coffin. मैं रोहतर महराज डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में रहता हूँ। मेरा गांव नेजबल पड़ता है। मेरे बाप हम सेपरेशन फैमिली से बिलोंग करते थे। मेरा बाप पहले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बिलोंग करता था। मैं खुद भी पत्थरबाजी में शामिल था, मुझे मेरे ऊपर FIR भी हुआ, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे लोगों को डेवलपमेंट चाहिए। ये सब कुछ ड्रामा है। मेरे लोग तरसते हैं बिजली पानी बेसिक सुविधा के लिए। I wanted to see the truth with my own eyes and I wanted to know what's in the heart of people. So I am at the Dal Lake in the heart of Srinagar city, and in next 2 days I'm going to explore food, culture, and also would find out how locals are responding to the newly implemented Panchayati Raj system. But first, I would try this Kashmiri roti. There are 4 to 5 lakes in and around Srinagar, and I am on my way to Manasbal Lake for a quick visit. While researching about Jammu and Kashmir,
I got to know about a gentleman from this area, Rathar Mehraj. In 2018, he contested Panchayat elections and became the village head. And in 2020, he contested the District Development Council elections but lost with a very narrow margin. So, would you contest DDC elections again? क्यों नहीं मैम, मैंने इलेक्शन लड़ा है, डीडीसी इलेक्शन लड़ा है, चंद वोटों से मैं पीछे रह गया, लेकिन इस बार मुझे लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया अपने गांव से लेकर दूसरे गांव में। खासकर मेरे वोटर नौजवान थे जिनका फर्स्ट वोट था, उन्होंने मुझे वोट किया। तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि मुझे इतने सारे वोट मिले हैं। इससे इंसान को एक बूस्ट मिलता है आगे जाने के लिए। I must say your village is one of the most beautiful village I have ever visited. So, you're also the village head that's called as Sarpanch here. सरपंच। How do you think Panchayati Raj system and DDC elections have changed things on the grassroots level? आप बोल रहे हो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी। मैं आपको एक बात बताऊंगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल बख्ची दौर, जब बख्ची यहाँ सीएम था, तब से लेकर आज तक किसी ने वो चेंज नहीं किया। जब मैं सरपंच बना, मैं सबसे पहले मैंने अपनी इलाके की इलेक्ट्रिक पोल्स, ट्रांसफार्मर, बिजली ठीक करवाई। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पानी की जो हमारी ज़रूरत थी वो मैंने ठीक करवाया। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारा एक प्ले फील्ड बन रहा है, जो हमारे यहाँ एरिया में कोई प्ले फील्ड खेलने के लिए नहीं था, तो उसका काम चल रहा है। लेकिन थोड़े से हालात ख़राब थे कोविड की वजह से, उसका काम रुक के चल, लेकिन वो बनेगा, वो प्लान में है, तो वो बनेगा। उसके पैसे भी वागुजार है। और उसके साथ साथ ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करूँगा, हमारे अकाउंट में पैसे है, डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसे इस वक्त, हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं। हम खुद पावर रखते हैं, हमें ग्राम सभा बुलानी पड़ती है, रेजोल्यूशन पास करना है तो काम स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास करोड़ों पैसा है जो हमारे गाँव के लिए है, जो हमारे लोगों का है, जो उन गरीब लोगों का है, तो वो हमें सही इस्तेमाल करने हैं। अगर आप चाहते हो सही इस्तेमाल करना तो अच्छा हो जाएगा। तो मैंने सरपंच एज अ सरपंच बहुत सारे काम किए, अभी भी करना है। 2019 के पहले ऐसा नहीं था। 2019 के पहले आपको बहुत परेशानी होती थी। देखो मैं बताता हूँ, जो पहले सरपंच थे उनके पास इतने पावर्स नहीं होते थे। यहाँ पे सरपंच को एक नीचे नज़र से देखा, वो बेचारा क्या कर रहा, जब उसके पास पैसे नहीं होते थे तो वो बहुत परेशान होता था। उसके पास आते थे साल में 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तो बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन इस बार करोड़ों में पैसा आता है। मैं सुरेंद्र अंबरदार हूं और कश्मीरी पंडित हूं। यहाँ श्रीनगर सोनवार में रहता हूं। और अनफॉर्चुनेटली जो पिछले 30 साल टेररिज्म और सेपरेटिज्म को लेकर यहाँ चले, उसमें एक बहुत ही बड़ा नेक्सस ग्रुप खड़ा हो गया, जिसमें यहाँ के पॉलिटिशियंस भी, जहाँ के जो पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड मोल्स और पॉलिटिशियंस भी और इंसर्जेंट्स भी, एक बहुत बड़ा नेक्सस के रूप में यहाँ उभर गया था। इसलिए इसको तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं एक अल्टरनेट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, एक अल्टरनेट व्यू, एक अल्टरनेट विजन की आवश्यकता थी। उसमें आप देख लीजिए कि जो पिछले 3 साल में लगभग 20 साल के बाद जो पंचायत राज सिस्टम को यहाँ दोबारा रिवाइव करने का प्रयास किया, आप देख लीजिए कि पंचायत इलेक्शंस जो और ब्लॉक चेयरमैन के इलेक्शंस वो चैलेंजिंग सर्कमस्टेंस में हुए। और इस बार जो डीडीसी इलेक्शंस हो गए, इसमें आपने एकदम से जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शंस को लेकर एक ह्यूज रिस्पॉन्स देख लिया। अब इसका आप देख लीजिए इसका इम्पैक्ट क्या है। यहाँ ट्रेडिशनली हमारे यहाँ लद्दाख को मिलाकर सिर्फ 87 असेंबली सेगमेंट्स थी। अब सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही जो ब्लॉक चेयरमैन लगभग 300 के आसपास हैं, कश्मीर में 137 और जम्मू में 160 के आसपास है। और डीडीसी मेंबर 280, यानी कि सब कुछ मिलाकर लगभग 500-600 लेकर नए नेतृत्व खड़ा हो गया, नया लीडरशिप खड़ा हो गया। Kashmiris are great hosts. After having scrumptious lunch at Mehraj's house, I walked on the streets with lamps. I always feel that gun battle cannot bring solution to any problem. एज ए कश्मीरी यूथ, जो मैं ये स्ट्रगल कर रही हूँ, ये कश्मीर की बेहतरी के लिए और कश्मीर की यूथ के लिए कर रही हूँ।
I'm so proud to meet you, Minha, today. You're a law student, you're just 23 years of age and the youngest DDC member. So please tell me what inspired you to get into politics and fight DDC elections? एक्चुअली आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, आई एम अ लॉ स्टूडेंट, जैसे कि आपने बोला। तो इस फील्ड में इस वजह से आई ताकि मतलब मैं लोगों की खिदमत करूं। रहा साल जब मैं देखती थी हमारे कश्मीर की हालत, आपको तो पता ही है कैसी है, नॉर्मल नहीं रहती है। तो जब मैं देखती थी हमारे कश्मीर की हालत पिछले 70 साल से, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट थी उनकी वजह से जो काम बिल्कुल भी नहीं हुआ, मैं चाहती थी कि वो काम मैं करूँ। उस वजह से मुझे काफ़ी मतलब ये था दिमाग में कि मैं इस फील्ड में आऊँ, लोगों की खिदमत करूँ, लोगों के लिए कुछ करूँ, अपने कश्मीर के लिए कुछ करूँ। और जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं ताल्लुकात रखती हूँ, मैं पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुकात रखती हूँ, वहाँ की हालत भी सबको पता है कि वहाँ रोज़मर्रा के मतलब कैसे हालत है वहाँ पे, रोज़ रोज़ कैसे इंसिडेंट होते हैं वहाँ पे। उस वजह से कि मेरे जैसे यूथ किसी और मतलब उनका दिमाग किसी और की तरह जा रहा था, मेरे डैडी साहब ने मुझे बोला कि आप इस फील्ड में जाओ ताकि लोगों को भी, मेरे जैसे जनरेशन को भी ये पता चलेगा जब मिन्हा आई इस फील्ड में तो आगे भी और आ सकते हैं। और जो हमारे ये एक इंसिडेंट है कि हमारे इलाके में एक एमएलए थे, उनकी वजह से 5 साल वो एमएलए रहे हैं, उनकी वजह से लोग उनको काफ़ी बार गए कि हमें एक मोटर दो, वो उनको प्रोवाइड नहीं कर, जैसे कि पता है उनके पास कितनी फंडिंग आती है। मेरे पास जब भी मेरे हिस्से में जो भी आया तो मैंने पहले वो मोटर उनको दिया। तो जो भी मतलब मेरे प्लान में था, मैंने हेल्थ सेक्टर के लिए 10 लाख दिए, रोड डेवलपमेंट के लिए 10 लाख दिए, और भी पीएचई डिपार्टमेंट के लिए भी 10 लाख दिए। मतलब इन दिसंबर से लेकर अभी तक मेरे मतलब 4-5 मंथ्स हो गए। तो मतलब उन 5 मंथ्स में मैंने इतना कुछ किया। आप सोचो कि आगे जाके मैं कितना करूँगी। While travelling from Srinagar to Jammu, I took a halt at Riyasi district headquarters to meet Sajra Qadir, who is elected as the vice chairperson of DDC. I met her in her office and from there she took me to her village, about 30 kilometers away from the district headquarters in a remote area where development hasn't reached. So how did you decide to contest the DDC elections? मैं एक थिएटर आर्टिस्ट थी, बचपन से ही मैंने थिएटर की फील्ड में कदम रखा था। मैं बड़े बड़े नेशनल थिएटर फेस्टिवल्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है। जब मैं बाहर जाती थी, लोगों से मेरी बातचीत होती रहती थी, तो वहाँ पे हमने ये देखा कि वहाँ पे पंचायती राज सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो वहाँ के जब हम लोग देखते थे कि डेवलपमेंट का जो पेस होता था बहुत तेज़ी से वहाँ पे होता था, लेकिन हमारे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में ये नहीं था। तो वही जब हम लोग जब स्कूल डेज़ में, कॉलेज जब पहुँचे तो देखते रहते थे कि कहीं ना कहीं तो ये हमारे में कमी है जिस वजह से हमारी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। लेकिन जो ये हमारे एमएलएज़ या एमएलसीज़ थे, इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था क्योंकि एरिया बहुत बड़ा होता था और हर जगह पे ये नहीं पहुँच पाते थे, क्योंकि इनका काम मेन जो होता था वो पॉलिसी मेकिंग का होता था। ये हमारी जो डीडीसी इलेक्शंस हमारी जो यूटी में हुई, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हमारी जो हमारी पंचायती राज सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ, और हमारा जो मेन पर्पस है वो गांव-गांव को देखना है, अपने जो पंचायत हैं उनको देखना है, गांव में किस चीज़ की कमी है वो देखना है और उस पे हमें काम करना है। जिस वजह से मेरा अपने में भी, मुझे खुद में भी बहुत इंटरेस्ट था कि मैं अपने गाँव में जाके लोगों की जो परेशानियाँ हैं उनका हल निकालूँ, और उसमें मैं लगी भी हुई हूँ, और ये मेरा अपना पैशन था कि मैं अपने गाँव के लोगों के लिए कुछ करूँ। हम अभी नाला सिंध जो ये बह रही है, पानी बह रहा है, तो इसका रुख भी बदल गया है। इसका रुख ऐसा है कि अमन शांति का ही है। One of the most interesting person I have met on this trip is Mr. Muzaffar Ahmad Butt. He's
formed a local association which mainly works to encourage youth to participate in politics and elections. जो पंचायती राज है, पंचायती राज को नाफिज करके 3 टायर सिस्टम को लागू करके पंचायती इलेक्शन शुरू कर दिए। तो हमने उसमें अपने 400 से 500 कैंडिडेट्स खड़े किए और हमने कहा कि अपनी एक जनरेशन जो है, नई जनरेशन जो यूथ है, उनको हमने बोला कि आप आगे आ जाओ। जब तक आप आगे नहीं आ जाएंगे तो पुराने इन सियासतदानों को हम कहाँ से पीछे रखेंगे, जिन्होंने आज तक हमारे साथ इस साल किया है, जो सिर्फ कुछ हमें दूसरे कामों में मशगूल रखकर अपनी रोजी रोटी सेंक रहे थे। वो डीडीसी इलेक्शन के बारे में तो लोगों को पता भी नहीं था कि ये क्या है, और जिन हुक्मरानों ने इस कदम को उठाया तो उन्होंने एक तवारीखी कदम उठाया। हिस्ट्री में पहली बार यहाँ डीडीसी इलेक्शन हो गए हैं और इस सियासत को उन्होंने घर घर नुक्कड़ नुक्कड़ हर डगर पे पहुँचा दिया। एक नया नेता को पैदा किया और एक नई अपेक्षा है, जिसको हम कहेंगे नई उम्मीदें जाग गई लोगों में कि अब हमें ज़्यादा MLAs MPs के घुटने टेकने नहीं पड़ेंगे। उनके घर हर उनको तो घर के चौखट पे आ गई सियासत, जो उनकी बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, चाहे उनको पानी, बिजली, अस्पताल, उनको वो तो घर पहुंच गई। उनको तो उन्होंने तो इस तरह इसका स्वागत किया है कि वो खुश होकर इनको गले लगाए कि उन्होंने बोला कि ये तो बहुत अच्छा कदम है।